Good morning, students. So today we are going to solve the Sonic School exam, which was conducted on 9th of January 2022. Okay, and we are going to see the solution of English part. So let's start. Your first question is, it is a poem, and you have to answer questions which are based on this poem. So this is a poem. The poem name is A Minor Bird. Look, so let's read this poem. A minor bird. I have wished a bird would fly away and not sing by my house all day. Have clapped my hands at him from the door when it seemed as if I could bear no more. So look at these 4 lines, students. What you can find out, जो poet है इसमें, this is a poem by Robert Frost, a very famous poet. Okay, इसमें poet क्या हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, irritate हो रहा है किससे, एक bird से वो परेशान हो रहा है, and वो wish कर रहा है that it would fly away, कि वो उसके घर के पास song ना गाए, वहां पे singing ना करे और वहां से चला जाए. Okay, so now let's read next 4 lines. The fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his key. And of course, there must be something wrong in wanting to silence any song. Now these 4 lines. अब इन 4 lines में जो poet है वो क्या realize कर रहा है कि कुछ गलती जो है वो उसकी भी है. Okay, the fault must have partly been me. And bird को blame नहीं किया जाना चाहिए. Why? Because जो bird के जो singing है वो उसका nature है. Okay, and bird is a part of nature, it is an element of a nature, and of course there must be something wrong in wanting to silence any song. So यहाँ पे in next 4 lines में realize कर रहा है poet कि ये गलत है bird को साइलेंट करवाना और बर्ड से एक्सपेक्ट करना कि वो सिंगिंग ना करे. ठीक है, सो दिस इज द पोएम. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस चेक करते हैं व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस पोएम. So the first question is question number 51. Which of the following statement is not true for the poem? अब आपने इन 4 options में से not true वाली statement check करनी है. So the first part is poem is written in first person and a narrative style. This is correct. Poem first person में लिखी गई है. Poet ने खुद ही उसको लिखा हुआ है. Look here. Look at this. I have wished, look at these words, I have wished by my house, I could bear no more, the fault must have been partly in me. So आप यहाँ से find कर सकते हैं कि जो poem आपकी first person में लिखी गई है, first person क्या होता है, I, me, we. Okay, so option 1 is correct. Now let's check the second option whether it is correct or not. Second option is the poem ends with a philosophical idea that acceptance of nature and its element is a must. Yes, that is true. Why? क्योंकि एंड की जो 4 लाइन्स है वहां पे हमें पता चल रहा है, वहां पे पॉइंट रियलाइज कर रहा है कि हमें नेचर और इसकी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए. ओके, सो ऑप्शन सेकंड इज आल्सो करेक्ट. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन थर्ड. Option third is the poem gives a message that insignificant things leave a deep impact on one's soul. So option 3, 1 is correct, 2 is correct, and option 3. पोएम हमें क्या मैसेज दे रही है कि जो चीजें होती है, इनसिग्निफिकेंट चीजें होती है जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इस पोएम में हम एक बर्ड को इनसिग्निफिकेंट कंसिडर कर रहे हैं, बट वो हमारे सोल पे, हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं. ओके, सो ये भी मैसेज है. सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ ऑप्शन 4, द पोएम इज रिच इन इमेजरी. इस पोएम में कोई ज्यादा इमेजिनेशन नहीं हुई है स्टूडेंट्स. ओके, द पोएम, इसमें जो भी हुआ है वो बिल्कुल एक्चुअल में, रियलिटी में क्या किया है पोएट ने, उसको नरेट किया है, उसको डिस्क्राइब किया. ओके, उसने कुछ इमेजिन नहीं किया है. सो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट. सो एज पर द क्वेश्चन आपने नोट ट्रू फाइंड करना था. ऑप्शन 4 वुड बी योर आंसर. ऑलराइट, ऑप्शन 4 वुड बी योर आंसर. So let's check question number 52 now. Choose the quote that best captures the central idea of the poem. यहाँ पे we are provided with 4 quotes. यहाँ पे 4 quotes हमें दी हुई हैं. ठीक है, हमने क्या करना है, इन 4 quotes में से ऐसा चूज करना है जो हमारी पोएम थी अभी रॉबर्ट फ्रोस्ट वाली, उसका सेंट्रल आइडिया या फिर उसकी थीम को रिप्रेजेंट करती है. सो द ऑप्शन 3, लुक एट दिस ऑप्शन 3. People are not disturbed by things, but by the view they take of them. People are not disturbed by the things, but by the view they take of them.
दिस इज अ कोट बाय एपिक्टेटस. ओके, सो ये जो कोट है हमारे, ये हमारे इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज इसमें बोला गया कि लोग चीजों से डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो डिस्टर्ब किससे होते हैं? अपने पर्सपेक्टिव की वजह से, ठीक है, अपनी व्यू की वजह से, किस व्यू से, किस पर्सपेक्टिव से वो चीजों को हैंडल करते हैं. सो इन द सेम वे हमारे पोएम में भी यही हुआ है. जो हमारा पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बर्ड की सिंगिंग से परेशान नहीं हो रहा, उससे परेशान नहीं हो रहा. एक्चुअली वो परेशान किससे हो रहा है? बिकॉज ऑफ हिज पर्सपेक्टिव. क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि बर्ड एक बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है. वो अगर उसको ये सोचता कि ये भी एक नेचर का एलिमेंट है एंड इसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए जितनी कि एक ह्यूमन बींग को, तो वो परेशान नहीं होता. सो पीपल आर नॉट डिस्टर्ब बाय थिंग्स बट बाय द व्यू द टेक ऑफ देम. Okay, so option 3 would be correct answer, students. ये represent कर रहा है हमारी poem के central idea को. All right, so let's look at the next question of this poem. Question number 53. The use of the word minor bird in title shows. आपने देखा है जो हमारी पोएम का टाइटल है द माइनर बर्ड, हमने माइनर ये वर्ड यूज किया है. ये क्या शो कर रहा है टाइटल में? ये शो कर रहा है कि जो ह्यूमंस हैं नेचर की चीजों को, नेचुरल एलिमेंट्स को कितनी कम इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, उनको कितना इनसिग्निफिकेंट समझते हैं. सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ऑप्शन 2 would be correct answer. Insignificance with which man regards nature. Insignificance means less importance, ठीक है, कि कोई इंपॉर्टेंस ना देना. सो जो इंसान क्या कर रहा है, मैन क्या कर रहा है, नेचर को कितना इनसिग्निफिकेंट समझता है. ओके, ये माइनर हमारा वर्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ऑप्शन 2 would be correct answer, students. Let's look at the next question. Question number 54. Which of the following emotions are expressed in first stanza? जो फर्स्ट 4 लाइन्स थी पोइम में, उसमें कौन से इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं? वहां पे क्या हो रहा है? पोइट इरिटेट हो रहा है बर्ड से, उससे परेशान हो रहा है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है. ओके, कि वो उसके घर में आके वहां पे सिंगिंग क्यों कर रहा है? सो एक्साइटमेंट नहीं है, एरोगेंस नहीं है, अलेशन नहीं है, इरिटेशन इज द करेक्ट आंसर, स्टूडेंट. ओके, सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर. वहां पे पोइट क्या हो रहा है? इरिटेट हो रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज. राइम स्कीम हम फाइंड करते हैं. लेट्स फाइंड आउट. I have wished a bird would fly away. Look at this word, away, and second word, all day. So away is matching with day, ठीक है, away मैच कर रहा है day के साथ, इसको हम ए देंगे, इसको भी हम ए देंगे. नेक्स्ट इज हैव क्लैप्ड माय हैंड्स एट हिम फ्रॉम द डोर. डोर, अब ये डिफरेंट साउंड है, इसको हम बी. एंड नेक्स्ट चेक करते हैं, आई कुड बियर नो मोर. सो डोर इज मैचिंग विथ मोर, सो इसको भी हम सेम बी लेटर, ओके, बी से रिप्रेजेंट करेंगे. सो आपकी पोएम की राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए ए बी बी. ऑलराइट, दैट इज हाउ यू फाइंड द राइमिंग स्कीम ऑफ ए पोएम. So the correct answer would be AABB. So option number 2 is correct answer, students. All right, option 2 is correct answer. Let's move to next question. Question number 56. Now your grammatical part starts from here. Question number 56. A lot of people want to become successful entrepreneurs, but only dash make the grad. कि बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बट कुछ ही लोग उस चीज में सक्सेसफुल हो पाते हैं. बट ओनली, अब लेट्स चेक दीज ऑप्शंस. बट ओनली नॉट मच, नो. बट ओनली वेरी लिटिल, नो. बट ओनली एनी मेक द ग्रेड, नो. बट ओनली फ्यू मेक द ग्रेड. बट ओनली फ्यू. फ्यू क्या होता है? फ्यू आपका नेगेटिव सेंस में वैसे यूज होता है. फ्यू मीन्स बहुत ही कम, ठीक है, कुछ. हमने क्लास में पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन फ्यू और फ्यू एंड द फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ऑलराइट, सो फ्यू ऑप्शन यहाँ पे नहीं है. फ्यू ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर, स्टूडेंट्स. बट ओनली फ्यू मेक द ग्रेड, कि सिर्फ कुछ ही हैं जो इस चीज को कर पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56. नाउ लेट्स चेक नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 57. Everybody dash keen to participate in the Nukkad Natak.
you have to choose the correct form of helping verb. Everybody dash. Look students, everybody ये जो word होता है ये हमेशा क्या लेता है, singular form of verb. You have to keep this in mind. हमने क्लास में डिस्कस किया है इसको काफी बार. Everybody singular form of verb लेता है हमेशा. So everybody is, okay, everybody is keen to participate in नुक्कड़ नाटक. ओके, पार्टिसिपेट प्रेजेंट टेंस की, हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो पता चल रहा है हमारा इससे क्या आएगा, इज वुड बी योर करेक्ट आंसर. एवरीबडी इज. ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 57. दैट्स द आंसर. क्वेश्चन नंबर 58. सम ऑफ दीज फैक्ट्स डैश इनकरेक्ट. सम ऑफ दीज फैक्ट्स डैश इनकरेक्ट. इज नहीं होगा, सम की बात हो रही है, प्लूरल है, एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है. ओके, सम ऑफ दीज फैक्ट्स has been incorrect, no. Had been incorrect, no, it's not making any sense. So option would be 2, are. Some of these facts are incorrect. All right, plural की बात हो रही है, some means कुछ एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है, plural है, so are would be correct answer. Some of these facts are incorrect. Question number 59. Don't waste your money, she said. आपने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व करके यहाँ पे हमें दिया हुआ है, सो आपने जस्ट इस पार्ट को चेंज करना है. सो शी सेड को इसने ऑलरेडी हमें चेंज करके दिया है, शी टोल्ड द बॉयज. ऑलराइट, शी टोल्ड द बॉयज. नेक्स्ट पार्ट को आपने करना है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट. शी टोल्ड द बॉयज डोंट वेस्ट योर मनी. नो, ये तो डायरेक्ट स्पीच ही हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है. नोट टू वेस्ट एनी मनी. इसमें एनी ये जो वर्ड है इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि एनी हमारा कुछ यूज नहीं हुआ है डायरेक्ट स्पीच में. ओके, ये भी इनकरेक्ट होगा. अब ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 आर लेफ्ट. टू नॉट वेस्ट देयर मनी, नॉट टू वेस्ट देयर मनी. सो एज यू कैन सी ऑप्शन 4 इज करेक्ट स्टूडेंट्स, नॉट टू वेस्ट देयर मनी. देखो, डोंट जब चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉट टू. वेस्ट सेम रहेगा. योर चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट कौन था, बॉयज थे. ठीक है, सो योर चेंज हो जाएगा देयर में, उनकी मनी. ऑलराइट, सो योर विल बी चेंज इनटू देयर एज पर द subject. So answer would be she told the boys not to waste their money. Option 4 is correct answer students. She told the boys not to waste their money. We already covered this topic of direct indirect speech in class. Okay, next is question number 60. Now this is question of models. Question number 60. You dash consult the thesaurus if you need synonym for these words. thesaurus क्या होता है स्टूडेंट्स, मींस एक डिक्शनरी या फिर एक वर्ड बुक जिसमें आपको सारे synonyms या सारे वर्ड्स मिल जाते हैं. ठीक है, सो यू डैश कंसल्ट द thesaurus if you need synonyms for these words. You had to know. We are not talking about past tense. Used to, past का यूज होता है. Might, very less possibility. यहाँ पे क्या है, we are very much sure. So you need to consult the thesaurus. Okay, you need to, कि तुम्हें क्या है, thesaurus कंसल्ट करने की जरूरत है अगर तुम्हें इन चीजों के, इन वर्ड्स के synonym चाहिए. ओके, सो यू नीड टू कंसल्ट thesaurus if you need synonym for these words. Need to. So question 2 would be correct answer. Necessity को शो करने के लिए we use need to. Question number 60, option 2 is correct answer. Question number 61. The boy said to them, let me walk now. Again, the boy said to them, let me walk now. So इस let को पढ़ के हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की सेंस है. सो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कन्वर्ट करके आपको दिया हुआ है, the boy requested them. अब आपने चेंज करना है इसको, the boy requested them. Let's look at the option. To let him walk now, to let him walk then, if he could walk then let me walk now. If he could, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती स्टूडेंट्स. कुड ठीक है, हमारे सेंटेंस में नहीं है. अब देखो, लुक एट द ऑप्शन नंबर 2. The boy requested them to let him walk then. let सेम रहेगा, me चेंज हो जाएगा एज पर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है, बॉय है, सो me चेंज हो जाएगा him में. ओके, एंड वर्क सेम रहेगा. एंड नाउ किस में चेंज होता है, नाउ हमारा हमेशा चेंज होता है देन में. हमने क्लास में ये डिस्कस किया है. ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी द बॉय रिक्वेस्टेड देम टू लेट हिम वर्क देन. ओके, द बॉय रिक्वेस्टेड देम टू लेट हिम वर्क then. Option 2 is correct answer. Question number 61, option 2. Question number 62. At this time tomorrow. Question number 62.
At this time tomorrow means we are talking about future. All right. At this time tomorrow we dash our project details to our teacher. So फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा. सो वी हैव बीन प्रेजेंटिंग, नो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा. हैड बीन प्रेजेंटिंग पास्ट, नो ये भी नहीं आएगा. दो ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास, विल हैव प्रेजेंटिंग, शैल बी प्रेजेंटिंग. विल हैव प्रेजेंटिंग, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर विल हैव लगाना था तो यहाँ पे बीन भी आना था. ओके, सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट. क्या बचा, what is left? Only option 3 is left. At this time we shall be presenting our project details to our teachers. Okay, so option 3 would be correct answer, students. We are talking about future continuous tense. Okay, so future continuous में हम क्या करते हैं, will shall plus be plus verb की first form के साथ ing form. All right, so option 3 is correct answer. Question number 63. Only one of the boys dash not done the homework. जहां पे भी ये हमारे पास आ जाता है फ्रेज वन ऑफ द, ये हमेशा स्टूडेंट्स लेता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. ये हमने डिस्कस किया हुआ है. ओके, जब भी वन ऑफ द फ्रेज आएगा आपके पास, इट ऑलवेज एग्रीज विद फर्स्ट फॉर्म, सॉरी विद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. सो ओनली वन ऑफ द बॉयज कैन नॉट डन द होमवर्क, नॉट मेकिंग एनी सेंस. कुड नॉट डन द होमवर्क, नो. हैज नॉट डन द होमवर्क, have plural के लिए यूज होता है. so option 3 has is correct answer. only one of the boys has not done the homework. okay, one of the boys के साथ one, इसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. so has and साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब done हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है. so option 3 is correct answer, students. Next question, question number 64. I have seen dash of his work to know that he is ready for a promotion. now look, I have seen कि मैंने उसका काम देखा है, और एंड आई नो दिस, कि मैं ये जानता हूँ कि वो प्रमोशन के लिए रेडी है. सो इस सेंस में जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, अब ऑप्शंस देखते हैं. आई हैव सीन फ्यू ऑफ हिज वर्क, कि मैंने बहुत कम उसका काम देखा है. बहुत कम काम देखे तो प्रमोशन नहीं मिल सकता. ओके, अ फ्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है, फ्यू से थोड़ा सा ज्यादा है कि मैंने उसका थोड़ा काम देखा है. सेवरल कई सारा काम, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा आ गया. एंड इनफ, अब देखो, I have seen enough of his work to know that he is ready for a promotion means मैंने उसका enough क्या होता है, काफी, ठीक है, sufficient amount में, कि मैंने उसका sufficient enough काम देख लिया है and now I know that he is ready for a promotion. So option 4 is correct fit as per the sense of our sentence, students. I have seen enough of his work to know that he is ready for a promotion. Okay, मैंने उसका sufficient काफी काम देख लिया है ये जानने के लिए that he is ready for a promotion. So question number 64, option 4 is correct answer. Question number 65. Now again, each of the suspected man dash arrested. जब भी ये phrase आता है हमारा students, each of the, ये हमेशा क्या लेता है, singular form of verb. All right, it always agrees with singular form of verb. So each of the suspected man dash arrested. Past tense की बात हो रही है, were नहीं आएगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी, सिंगुलर फॉर्म ही आएगी. हैव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा. सो ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन वाज अरेस्टेड. ऑलराइट, ईच ऑफ द के साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, अपनी सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब. सो ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन वाज अरेस्टेड. Option 1 is correct answer. Question number 65, option 1 is the correct answer, students. Question number 66. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपने क्या करना है, यू हैव टू जस्ट अरेंज दीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, जैसे आपके डिक्शनरी में होते हैं. सबसे स्टार्टिंग में ए होता है, देन बी सी डी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं. सो जब हम सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, स्टूडेंट्स. लुक, पी से तो सारे ही स्टार्ट हैं. ओके, सो पी के बाद हम नेक्स्ट लेटर चेक करते हैं, ए. सो ए इसमें भी है. अब इसके बाद सो पहले हम स्टार्टिंग में ए वालों को ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट में फिर ई आ गया, ई ओ ओ आर. ओके, पी ए आर, आर इसमें भी है. अब जब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, हम जाते हैं फोर्थ लेटर पे. सो यहाँ पे है ए एंड यहाँ पे है आई. सो ऑब्वियसली इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, स्टार्टिंग में आने की इस वर्ड को मिलेगी. ऑलराइट, एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो ऑप्शन 3 वुड बी योर करेक्ट आंसर. ऐसे ही जब इन सबको हम चेक करते हैं इन द सेम वे एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. Okay, so option 3 is correct answer. You can check it, students. You just have to arrange these words in alphabetical orders. That's it. Question number 67. Ramesh knocked at the door thrice.
Ramesh knocked at the door twice, but no one answered. अब ये जो word है, your underlined word, you have to tell. What is it? Is it a preposition, conjunction, verb or adverb? अब देखो students, Ramesh knocked at the door twice. Ramesh ने door पे 3 बार knock किया. So this is one complete sentence, but no one answered. किसी ने आंसर नहीं किया. दिस इज ऑल्सो वन कंप्लीट सेंटेंस. नाउ ये वर्ड, अब ये जो बट वर्ड है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है? ये दो अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा है. ओके, लिंक कर रहा है. सो लिंकेज का, ज्वाइनिंग का काम कौन करता है? कंजक्शन करते हैं. ओके, वी हैव डिस्कस दिस इन क्लास. कंजक्शन करती है हमारे सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम. सो इसमें ये जो हमारा बट वर्ड है, ये ज्वाइन कर रहा है इस पार्ट को एंड सेकंड वाले पार्ट को. सो दिस इज अ कंजक्शन. क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. व्हाट इज अ कंजक्शन? Next question, 68. Which of the following sentence is in simple past tense? Normally अगर आपको tenses, if you are clear with tenses, आप इसको easily find कर सकते हो. Simple past tense की बात हुई. Simple past tense में हमारा students क्या होता है? हमेशा जो हमारा formula होता है, subject होता है, then हमारे पास verb second form होती है, and then हमारा object होता है. That's it. इतना सही काम होता है. So अब check करते हैं किस sentence में ये same formula apply हुआ है. Question number 1, the baby, option number 1, the baby broke the glass. So the baby है subject, broke second form of verb and the glass हमारा object है. Correct answer. Second में अब जब हम check करते हैं, the baby break the glass, break नहीं होती है students, this is incorrect. break की second form of verb होती है broke, so breaked option 2 incorrect हो जाएगा. The baby has broken the glass, ये नहीं हमने बताना because हमने simple past tense बताना है. ये third जो option है हमारा, ये प्रेजेंट में है. ओके, एंड बेबी हैड ब्रोकन द ग्लास, ये हमारा किस में है? पास्ट परफेक्ट में. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 68, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 69. The phrase "weather the storm" means. Now this is a question of idioms and phrases, students. Idioms and phrases. The phrase "weather the storm", इसका मीनिंग क्या होता है? Correct answer is students option 3, to face challenges means कुछ challenges को face करना and then उनको overcome करना. So ये meaning होता है इस phrase का, weather the storm, to face challenges. Alright, a difficult situation नहीं होगा, to go out on a stormy day नहीं होगा, and easy situation नहीं होगा. Option 3 is your correct answer. To face challenges, challenges को face करना and then उनको overcome करना. Question number 70. This is a question of jumble word, students. Question number 70. Choose the option that has right rearrangement of the following words to make a meaningful sentence. Jumble words हैं, just एक proper sequence में लगाना है. That's it, और कुछ नहीं करना है. Planning, poor, rise, urban, give me pollution to noise. So जब हम सारे sentences को read करते हैं, you may find out, students, you will find out actually, poor urban planning may give rise to noise pollution. Option 3 is your correct answer. This is making sense. Poor urban planning may give rise to noise pollution. ठीक है, कि अर्बन एरियाज को प्रॉपर्ली प्लान ना करना, ये किस चीज को राइज कर सकता है, किस चीज को बढ़ावा दे सकता है? नॉइज पोल्यूशन को. ऑलराइट, सो पुअर अर्बन प्लानिंग मे गिव राइज टू नॉइज पोल्यूशन. ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70. Question number 71. Which of the following is an imperative sentence? Imperative sentence कौन से होते हैं students? You know very well. जिसमें क्या होता है, एक ऑर्डर की या एक कमांड की सेंस होती है. ठीक है, जब हम किसी को ऑर्डर या कमांड करते हैं. So those are referred to as imperative sentence. So look at these options. May God bless you, my friend. No. ये क्या है? ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा. They were not invited to the party. Negative sentence. Open the windows. Look, question number 3. Open the windows. Now there is a sense of command. There is a sense of order. Order दिया जा रहा है. Open the windows. Okay. So option 3 is your correct answer. Because imperative sentence कौन से होते हैं? जिसमें हमारी command की या order की sense होती है. So question number 3 option number 3 for question number 71 is correct answer. Next question is, in which of the following sentence does the verb agrees with its subject? Simply आपने ये चेक करना है इस क्वेश्चन में कि किस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है एज पर द सब्जेक्ट. ठीक है, और कुछ भी नहीं है. सो व्हाट टाइम डज द न्यूज स्टार्ट?
नो। क्वेश्चन नंबर 1 को जब ऑप्शन 1 को हम रीड करते हैं, व्हाट टाइम डज द न्यूज स्टार्ट। अब देखो डज भी आ चुका है और स्टार्ट के साथ आपने एस भी लगा दिया है, नो। व्हाट टाइम डू द न्यूज स्टार्ट, नो। What time do the news start? No. Option 2 is your correct answer, students. What time does the news start? अब देखो जो न्यूज है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। न्यूज इज अ सिंगुलर नाउन, ऑलराइट। सो इसके साथ हमारी जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में लगेगी, ऑलराइट। What time does the news start? So option 2 is your correct answer. Singular subject, singular form of verb. ओके, सब्जेक्ट आपकी जो वर्ब है सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है सो वर्ब विल बी ऑफ प्लूरल फॉर्म। इफ योर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म योर वर्ब विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जंबल वर्ड्स, यू जस्ट हैव टू अरेंज। Pollution, health, noise both affects behavior and. So when we read all these sentences, we will find out that noise pollution, question number 4, noise pollution affects both behavior and health. Noise pollution affects both behavior and health. So option 4 is correct answer. जब हम इन सारे वर्ड्स को अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ये हमारा लास्ट वाला नंबर 4 ये बनता है हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस। Noise pollution affects both behavior and health. Option 4 is correct answer for question number 73. Now question number 74. Analogy. Analogy क्या होता है? कंपैरिजन करना, दो चीजों के दो चीजों के बारे में सिमिलैरिटी दिखाना, ठीक है। So question number 74. Analogy is a comparison between one thing and another. Okay. स्पेशली किस लिए करते हैं हम एनालॉजी? यूज एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ठीक, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो अब हमने इसमें देखना कि किस सेंटेंस में करेक्ट एनालॉजी यूज हुई है स्टूडेंट्स। कंपोजर इज टू म्यूजिक एज फ्लावर्स आर टू पोएम, नो। कंपोजर इज टू म्यूजिक, म्यूजिक को जो कंपोज करता है ये एक अलग चीज है, एंड फ्लावर्स आर टू पोएम, पोएम को कंपोज कौन करता है? पोइट। सो ये तो इनकरेक्ट हो गई। नाउ लुक, पॉ इज टू डॉग एज हूफ इज टू हॉर्स। पॉ क्या होता है? डॉग का जो फुट होता है उसको हम क्या रेफर करते हैं? पॉ, ठीक है। सो पो इज टू डॉग एज हूफ इज टू हॉर्स, और हॉर्स के फुट को हम क्या बोलते हैं? हूफ। सो ये है करेक्ट एनालॉजी, बिकॉज हमने इसमें डॉग के फुट को एंड हॉर्स के फुट को कंपेयर किया है। ऑलराइट, हमने बोला है जो डॉग का पो है वो सेम है जैसे कि हॉर्स का हूफ है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। यहाँ पे करेक्ट एनालॉजी या करेक्ट कंपैरिजन यूज हुआ है। ऑप्शन 2 वुड बी योर करेक्ट आंसर। Question number 75. Identify the predicate in following sentence. आपने क्या करना है? predicate बताना। हर सेंटेंस में हमें पता है एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है हर सेंटेंस में? जो एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एंड बाकी जो सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी कुछ पार्ट होता है दैट इज रेफर्ड टू एज प्रेडिकेट। सो ये है सेंटेंस, ही थिंक्स दैट ही हैज फिनिश्ड द कोर्स। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी सब बचा हुआ प्रेडिकेट में आ जाएगा। सब्जेक्ट है इसमें ही, ये जो पर्सन है जिसकी बात हो रही है ये है सब्जेक्ट, बिकॉज ये एक्शन ले रहा है, ठीक है। ये है हमारा सब्जेक्ट। सो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंड बाकी जो भी पार्ट बचा है स्टूडेंट्स वो आपका आ गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट पे क्या काम हो रहा है वो पार्ट आ जाता है आपका प्रेडिकेट के अंदर। सो ही थिंक्स दैट ही हैज फिनिश्ड द कोर्स। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो सोचता है कि उसने कोर्स फिनिश कर लिया है। सो सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, थिंकिंग का काम कर रहा है। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 4, he thinks that he has finished the course, because सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? थिंकिंग का काम कर रहा है। सो ऑप्शन 4 यहां से आपका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स होगा, ये 3 करेक्ट नहीं होगा। ऑलराइट, ऑप्शन 4 is your correct answer. Option 4, this is your predicate part of sentence, and he, this is your subject part. So we are done with all the questions now, students. Your exam was quite easy. It was quite simple as per your standard, as per class 9. It was quite easy, and सारे questions जो भी questions आए हमने क्लास में सारे questions cover किए हैं। Even हमने इससे काफी ज्यादा difficult level के questions भी cover किए हैं, but exam आपका काफी simple level का रहा था। Okay. So I hope you all clear your exams, and all the very best for your results. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।